Hello and welcome to fifth lecture of HRM lecture series. In this lecture, we will talk about the role or status of human resource manager and the competencies of human resource manager. So let's start. Since human resource manager deals with human beings and their problems, therefore human resource manager is people centric. Now let us see what other roles human resource manager plays. So the very first one is that human resource manager formulates policies which are related to the remuneration, transfer, promotion, appraisal, welfare activities, personnel records and working environment. In fact, all these are the functions performed by human resource manager and therefore he or she formulates policies to fulfill these responsibilities. Next role of HRM is that he or she acts as an advisor to the top management. HR मैनेजर का काम है टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना उन सारे इश्यूज पर जो रिलेटेड होंगे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी से या लेबर लॉ से या प्रोसीजरल गाइडलाइंस से. बहुत सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट से आती हैं. गवर्नमेंट काफ़ी गाइडलाइंस इशू करती है रिलेटेड टू लेबर मैनेजमेंट. सिमिलरली देयर आर लेबर लॉज. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसे इन लॉज के बारे में भी जानकारी है, उसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में भी पता है एंड देयरफॉर ही और शी एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट he or she works as a relationship manager. ये रिलेशनशिप मैनेजर का जो काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक ऐसा लिंक है बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड टॉप मैनेजमेंट कि ट्रेड यूनियंस की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी डिमांड्स को मैनेजमेंट तक कन्वे करना, सिमिलरली मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को वर्कर्स तक कन्वे करना. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज अ रिलेशनशिप मैनेजर, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड top management. Next role of human resource manager is that he or she is the representative of top management for workers and spokesperson of workers to the टॉप मैनेजमेंट. तो एक तो वो ब्रिज का काम कर रहा है ट्रेड यूनियन और टॉप मैनेजमेंट के बीच में, साथ साथ अगर वर्कर्स की कोई बात है, कुछ कन्वे करना है टॉप मैनेजमेंट को, तो वो वर्कर्स का स्पोक्सपर्सन बनता है. ऑन द अदर हैंड अगर टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स तक कुछ कन्वे कराना चाहते हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्कर्स के साथ बात करता है. Another role or the status of human resource manager is that he or she acts as a mediator between the superior and the subordinate. So what happens that if in any department there are say one superior and 4 subordinates, and if there is some sort of tussle between the superior and the subordinate, then human resource manager steps in और वो उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है और उनका कोई भी जो इस तरह के इश्यूज हैं जिनसे किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या अनसर्टेनिटीज बनती हैं या ऐसा होता है कि ग्रीवेंसेस बनते हैं, तब ये मीडिएटर का काम करता है दोनों के बीच में, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करता है एंड इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसे खत्म करने का काम करता है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज अ मीडिएटर बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. Also, human resource manager is a mediator between the employees. इसका मतलब ये कि अगर एक ही लेवल के एम्प्लॉयज के बीच में किसी तरह के ग्रीवेंसेस हैं, किसी तरह की डिस्टर्बेंसेस हैं, तब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है. And the third stage where human resource manager works as a mediator is between the management and the employees. तो हमें ये 3 अलग अलग तरह के रिलेशन नजर आ रहे हैं. एक है in the same department, if there is a difference, if there is a problem between the superior and the subordinate, then this HRM manager steps in और उनकी problems को resolve करता है. If
In the second stage, if there is a problem between the workers at the same level, again human resource manager works as a mediator and tries to resolve the issue. Third is when there is any sort of disturbance between the management and employees. There can be some sort of misunderstanding, there can be some sort of grievances, there can be some sort of complaints, और तब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में मीडिएटर का काम करता है, उन परेशानियों को सुलझाने का काम करता है जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. Next role of HR manager is a role of leader. Leader means here the HR manager has to lead the whole team of workers, क्योंकि वो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, और इसीलिए वो उनका नेता भी बनता है, उनका लीडर भी बनता है. साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक काउंसलर होता है टू द वर्कर्स. वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी तरह की डिस्कशंस होती हैं, तो HR मैनेजर वर्क्स एज अ counselor. Also, HR manager provides them guidance and advice, right? Now, the next very important, very interesting role of HR manager is that he or she acts as a firefighter. तो अभी हमने कहा था कि वो मीडिएटर का काम करता है. मीडिएटर तो ये हुआ कि अगर कोई झगड़ा है तो उसको सुलझाने का काम किया, लेकिन फायर फाइटर इससे एक स्टेज ऊपर की बात है, यानी जब झगड़ा ज्यादा बढ़ चुका है और तब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के नोटिस में आता है, तब ही वर्क्स और शी वर्क्स एज अ फायर फाइटर. तो हमने फायर फाइटर्स को काम करते हुए देखा है, और वहां पर क्या होता है कि आग लगी हुई है और वो उसको बुझाते हैं, और साथ साथ अगर आग में कोई फंस गया है तो उसे बचाते हैं. तो सिमिलर रोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्ले करता है जब ऐसी सिचुएशन आती है कि झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, और जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ही हैंडल करना पड़ता है. लास्ट फंक्शन और द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है वर्कर्स के हेल्थ और सेफ्टी को, वर्कर्स की कमिटमेंट को बनाए रखना, तो ही और शी वर्क्स एज अ वेलफेयर ऑफिसर ऑल्सो. और जब वो वेलफेयर ऑफिसर है तो वो किन किन चीजों को मैनेज कर रहा है? मैनेजेस द प्रोविजंस ऑफ क्रेच. क्रेच की जब तक हम बात करते हैं, अगर हमारे वर्कर्स को हम इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं जैसे क्रेच दिया, या कैंटीन, या ट्रांसपोर्ट, या मेडिकल, या एक्सकर्शंस, तो ये वो सारी फैसिलिटीज हैं, ये वो सारी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं जिनसे हम इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स का काम की तरफ ध्यान बढ़ेगा और उनका टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट बढ़ेगा. तो ये वेलफेयर ऑफिसर का भी काम करता है, यानी अपने वर्कर्स के, वर्कफोर्स के वेलफेयर का ध्यान रखने का काम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए. किसी भी एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो क्या क्या करने लायक होना चाहिए, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो दीज आर वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिनको ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं. एक है बिजनेस मास्टरी, एक है HR मास्टरी, one more is personal credibility, and the last is change mastery. So let us talk about these one by one. Business mastery, since we are talking of a business organization, तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो HR मैनेजर है, काम तो उसका ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, लेकिन साथ साथ उसमें बिजनेस एक्यूमेन होना जरूरी है. यानी कैसे कोई एक बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, कैसे कोई बिजनेस फ्लरिश होता है, और कैसे अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना चाहिए. तो ये बिजनेस मास्टरी में सबसे पहली चीज है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, बिजनेस समझ आना चाहिए कि कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है. इसके अलावा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस मास्टरी का, वो है कस्टमर ओरिएंटेशन. कोई भी बिजनेस हो वो कस्टमर्स की वजह से ही सरवाइव करता है, एंड इफ आवर कस्टमर्स आर हैप्पी, वी
can ensure that we will be able to grow, we will be able to expand our business and we will be able to earn more profits. तो ये कस्टमर ओरिएंटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है. अगर हम कहते हैं कि कोई एक एचआर मैनेजर बहुत अच्छा एचआर मैनेजर है, तो उसमें ये एक स्किल होना बहुत जरूरी है कि वो कस्टमर्स के लिए क्या फायदेमंद है, कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए, उसका ध्यान रखे, उसको नॉलेज हो, ताकि अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाए. एंड द लास्ट aspect of business mastery is external relations. हमें पता है कोई भी बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकता है. कोई भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे लिंकेजेस बनाने पड़ते हैं और वो लिंकेजेस बहुत सारी तरह के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस के सप्लायर्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के बायर्स होते हैं. फिर बिजनेस जो ऑपरेट करता है किसी एक एनवायरमेंट में ऑपरेट करता है, और वो एनवायरमेंट में चाहे वो लीगल एस्पेक्ट हो, चाहे वो पॉलिसी मैटर्स हो, चाहे वो से चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब एक्सटर्नल रिलेशंस अच्छे बनाने की तरफ ध्यान रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अकॉर्डिंगली मैनेज करता है कि जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो अच्छे बने. आप समझ रहे हैं, जो बिजनेस मास्टरी की हम बात कर रहे हैं, अगर इन 3 चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसका मतलब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में ये कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है, ये कैपेबिलिटी होनी जरूरी है कि वो बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये उसको पता हो. नेक्स्ट इज एचआर मास्टरी. इसके बारे में तो मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मास्टरी तो होनी ही चाहिए. यानी उसे क्या क्या करना बहुत अच्छा आना चाहिए. स्टाफिंग के बारे में जब हमने शुरू में बात की थी तो हमने कहा था कि भाई यहाँ पर हम जॉब एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने और कैसे और कब वर्कर्स चाहिए. उसके लिए फिर हम अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं. ऑल दिस फॉल्स अंडर स्टाफिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में एक ये स्किल होनी बहुत जरूरी है कि वो जॉब को ठीक से एनालाइज करके प्रॉपरली वर्कर्स अरेंज कर पाए, ऑन टाइम वर्कर्स अरेंज कर पाए. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट एचआर मास्टरी इज रिलेटेड विद स्टाफिंग. अब जब हमने वर्कर्स को रख लिया, हायर कर लिया, एंगेज कर लिया, तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के करने का, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल. और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजिंग आवर वर्कर्स, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट इवेल्युएटिंग और मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तभी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा जब उसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से और फेयर तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेज करना आता होगा. नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी दैट HR कॉम्पिटेंसी दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मस्ट possess इज रिवॉर्ड्स सिस्टम. ये पहले भी बात हो चुकी है कि सिंस वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, तो वो कोई मशीन की तरह नहीं कि हमने 8 घंटे उनसे काम कराया और आधा घंटा उसको आराम कराया और फिर से हमने उन्हें काम पर लगा दिया, और हम उन्हें क्या पे कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन वर्कर्स को बहुत फर्क पड़ता है. और ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है, ये सिर्फ बेसिक वेजेस और सैलरीज नहीं है. दिस इंक्लूड्स इंसेंटिव्स, दिस इंक्लूड्स पर्क्स, दिस इंक्लूड्स बेनिफिट्स ऑल्सो. तो कब किसको कितने बेनिफिट्स देने हैं, ये मैनेज करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की मास्टरी का पार्ट है. देन कम्युनिकेशन. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को वर्कर्स के साथ डील करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट के साथ डील करना है. तो अनलेस एंड अनटिल ही और शी हैज गुड कम्युनिकेशन skills, it will not be possible to deal with a huge number of workers and the top management. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है. लास्ट HR मास्टरी रिलेट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा ये किस तरह का होगा, इसमें कितने लोग क्या क्या काम करेंगे. दिस इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन. तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, कि वो किस तरह का हो. ये नॉलेज होना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत जरूरी है. लेट अस टॉक अबाउट चेंज मास्टरी. चेंज मास्टरी की जब हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कि उसको चेंज मैनेज करना आना चाहिए. अब
since we know that nothing is permanent in business world except change, this must sound quite unusual कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के, और चेंज का मतलब ये है कि परमानेंट ना होना। तो चेंज इज समथिंग जो हमेशा होता रहेगा, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये ध्यान देना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इस चेंज को कैसे मैनेज करना है, और चेंज को मैनेज करने के लिए उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इन्फ्लुएंस, यानी हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इन्फ्लुएंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कैसे अलग अलग तरह के लोगों को हम कैसे डील करें और कैसे ये इंश्योर करें कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, तो ये स्किल जरूरी है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो चेंज का मतलब ये है कि डेली नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हो तो कभी किसी की कोई समस्या है, कभी कोई समस्या है, एंड human resource manager must be competent to solve these problems and must be capable to solve these problems in such a manner that वर्कर्स फील satisfied, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, rather their problem must be resolved। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंज का पार्ट है, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। हालांकि रिवॉर्ड सिस्टम को हमने एचआर मास्टरी में भी पढ़ा था, यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को वर्कर्स को मैनेज करना है तो उसे समझ होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब किसको कितने रिवॉर्ड्स देने हैं, किस तरह से मोटिवेट करना है अच्छा काम करने के लिए। यहाँ जब हम चेंज मास्टरी में फिर से रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया गया वो हमेशा एक जैसा रहे, ऐसा नहीं है। ये रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग सिनेरियो, कि क्या सिचुएशन चेंज हो गई और क्या पुराने मोटिवेशनल सिस्टम आज भी काम करेंगे या उन्हें हमें चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट important point of change mastery is innovativeness and creativity, क्योंकि रोज सिचुएशन चेंज होती है, रोज सिनेरियो बदलता है, therefore HR मैनेजर मस्ट बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, कि कैसे बदलती हुई सिचुएशंस को कैसे हम हैंडल करें इनोवेटिवली। तो जैसे अभी हमने नोटिस किया कि पैंडेमिक ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए और इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी नई सिचुएशंस आई कि अगर हम इनोवेटिव ना हो, अगर हम क्रिएटिव ना हो तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। तो ये सिचुएशन पैंडेमिक में तो 100 साल में एक बार आती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डेली बेसिस पर होता रहता है। सिचुएशन चेंज होती रहती है और आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव होने की जरूरत पड़ती है उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पर्सनल क्रेडिबिलिटी। ये मैं सबसे लास्ट में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो बाकी तीन चीजें हैं, बिजनेस मास्टरी, एचआर मास्टरी और चेंज मास्टरी, ये तो ध्यान में रखनी ही है, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि एचआर मैनेजर जो है वो एक लीडर होता है, वो एक मोटिवेटर होता है, वो वर्कर्स को इंश्योर करता है कि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की जाएंगी, उनको इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन ये सब करने के लिए उसकी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी लोगों को, वर्कर्स को ये भरोसा होना चाहिए कि जब कभी समस्या आएगी तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारी हेल्प करेगा। उसके ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि वो जब भी किसी दो सिचुएशंस को हैंडल करेगा, दो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेगा, तो वो एक जुडिशियल डिसीजन लेगा, यानी वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि एक को प्रेफरेंस देगा, दूसरे के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगा। यानी ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर एचआर मैनेजर ट्रूली एक लीडर बनना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके वर्कर्स उनकी बातों को माने, तो ये पर्सनल क्रेडिबिलिटी विच इंक्लूड्स ट्रस्ट, विच इंक्लूड्स पर्सनल रिलेशनशिप, विच इंक्लूड्स लिव्ड वैल्यूज। लिव्ड वैल्यूज मीन्स सिर्फ प्रीच ना करता रहे बल्कि प्रैक्टिस भी करे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स
पंक्चुअल हो, वो टाइम पर काम पर आए। तो ये करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो टाइम पर काम पर आए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को भी टाइम पर काम पर आना पड़ेगा। तो उसे अपने बिहेवियर से वो सारी चीजें शो करनी है, वो सब करके दिखाना है जो वो चाहता है कि उसके वर्कर्स करें। जो ह्यूमन रिसोर्स जिनको वो मैनेज कर रहा है, वो तभी उसे फॉलो करेंगे जब वो खुद भी वैसा ही करेगा जैसा वो एक्सपेक्ट करता है कि वर्कर्स करें। एंड लास्ट is the courage. This human resource manager must be courageous because he or she has to deal with changing situations all the time. He or she has to deal with variety of people. तो अगर उसमें करेज नहीं होगा, अगर उसे डिफरेंट सिनेरियोज को हैंडल करने की हिम्मत नहीं होगी, तो वो उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। वर्कर्स उसको भरोसा नहीं करेंगे कि वो चीजों को मैनेज करेगा और उनको हेल्प करेगा। तो ये जो सारे हमने 4 पॉइंट्स और इनके बीच के डिटेल्स जो हमने पढ़ी, इससे हमें क्लियर हुआ कि व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ human resource manager. With this we finish our this topic, and if you have any doubts you can write in comment section, and we will meet in the next lecture with a new topic. Bye.